بلا شبہ اللہ رب العزت بہت زیادہ دیکھنے والے اور سننے والی ہے۔ معراج کا سفر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہے، بطور معجزے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک تھوڑے سے وقت میں جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، آسمانوں کا سفر کرایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب لے جایا گیا۔ تو یہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ یہاں پر بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے، یہاں پر ایک گیٹ لگا ہوا ہے باب عبدالعزیز کے نام سے، تو اس کی داہنی جانب میں ابھی یہ جگہ موجود ہے۔ جو حضرات حج کرنے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے قریب میں ایک گیٹ ہے باب عبدالعزیز کے نام سے، اور اس جب گیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو بائیں جانب میں یہ جگہ پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، جس گھر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کو کچھ آواز آنی شروع ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، اللہ کے نبی نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی ہوا، 3 مرتبہ جب ایسا ہوا، 3 مرتبہ کے بعد جس گھر کے اندر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اوپر سے چھت پھٹتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2 آدمی آئے، یعنی 2 فرشتے آتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہاں پر لے جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ چیک کیا، قلب اطہر کو نکالا، اور قلب اطہر کو نکالنے کے بعد سونے کے دشت میں رکھ کر اس کے اندر علم و حکمت بھرا گیا، یعنی زمزم کے پانی سے قلب اطہر کو دھویا گیا، اور پھر بالکل صحیح طریقے سے اس کو ایسے ہی لگا دیا گیا۔ یعنی جب کہیں جیسا کہ حج کرنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو جانے سے پہلے وہاں آدمیوں کو دوائی پلائی جاتی ہے، انجیکشن لگائے جاتے ہیں، تاکہ وہاں جا کر کوئی آدمی کو تکلیف پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہاں کی آب و ہوا معتدل ہے یا بدلی ہوئی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیونکہ اب سفر شروع ہونے والا ہے، آسمانوں کا سفر شروع ہونے والا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کو نکالا، یعنی اللہ کے نبی کا آپریشن کیا گیا، اور قلب اطہر کو نکال کر اس کے اندر علم و حکمت بھرا گیا۔ اس کے بعد سینے کو برابر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہتے ہیں۔ یہ براق جو ہے کھچر کے مانند ایک سواری ہے، ایک جانور تھا۔ اس کی رفتار کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی رفتار اتنی زبردست تھی، اتنی تیز تھی کہ بجلی کے مانند، بجلی آتی ہے تو سیکنڈوں میں کئی کلومیٹر کے 1000 کلومیٹر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ کھچر جو تھا، براق جو تھا، اس کی تیز رفتار اتنی زبردست تھی کہ بجلی کے مانند تھا۔ آدمی کی نگاہ جہاں تک پڑتی ہے، یعنی اتنی دیر میں اتنی دور پہنچ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب آئے۔ وہاں جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کو براق کو ایک جگہ باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے۔ اب آپ علیہ السلام کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، جن میں ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی، آپ کو اختیار ہے کہ ان میں سے آپ کو جو سا پیالہ پسند ہو آپ اس کو استعمال فرما لو۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا اور اس کو استعمال کر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ نے سرت والے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ اگر آپ شراب والے پیالے کو نوش فرما لیتے تو آپ کی امت ہلاک و برباد ہو جاتی، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس نے فرمایا کہ اننا حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یعنی اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے مردار کو، بہتے خون کو، اور
गोश्त को। और इसी तरीके से गैरुल्लाह यानी जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया जाता हो, गैरुल्लाह का नाम लिया जाता हो, तो तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर हराम करार दी है। जब आमतौर से शराब का रिवाज था, साहबा किराम को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि शराब की हुर्मत साबित हो गई है, शराब के हराम करार दे दिया गया है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को इस दौर से इस पर अमल किया। रिवायत के अंदर आता है कि मदीने के अंदर तमाम जगह पर शराब फैली हुई थी, यानी तमाम साहबा किराम ने अपने घरों के अंदर जो शराब रख रखी थी तमाम के तमाम मटकों को तोड़ डाला। ऐसा महसूस हो रहा था गोया कि कोई पानी का यहाँ पर चश्मा खोल दिया गया हो, तमाम जगह पर शराब फैली हुई थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इस जोर से वो खैर मकदम क्या करते थे, अल्लाह के नबी की बात को इस जोर से तस्लीम क्या करते थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दूध वाले प्याले को नोश फरमाया। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी आपको खुशखबरी हो, आपको खुश आमदेद हो, आपने फितरत वाले रास्ते को इख्तियार कर लिया है। अगर आप शराब वाले प्याले को नोश फरमा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती, हलाक हो जाती। उसके बाद आपके लिए एक सीढ़ी लाई गई, यानी सीढ़ी को अरबी में मेराज कहते हैं। मेराज और मेराज को कहते हैं अरबी में और उर्दू में कहते हैं सीढ़ी। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मेराज कराई जा रही है, सवारी पर सवार है, आसमानों का सफर शुरू होने वाला है। तो उस दौर में जब अल्लाह के नबी ने ये बात बतलाई थी कि मैंने आसमानों का सफर किया है, तो उस वक्त लोगों ने इस पर एतराज किया था कि थोड़े से वक्त में क्या कोई एक इंसान आसमानों पर जा सकता है, मस्जिद अक्सा जा सकता है और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात कर सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज के दौर में इस पर अमल करना, इसको जानना कोई अक्ल की दूरी नहीं है, क्योंकि आज हर इंसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इंसान को दिमाग दिया छोटा सा, और इस छोटे से दिमाग से एक इंसान न जाने कैसी कैसी मशीनें ईजाद कर रहा है। आज इंसान हवाओं पर सवार हो रहा है, हवाओं पर उड़ रहा है और चांद तक एक इंसान पहुंच रहा है। तो जब एक अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को छोटा सा दिमाग दिया और उस छोटे से दिमाग के जरिए से एक इंसान कैसी कैसी मशीनें ईजाद कर रहा है, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको दिमाग दिया है, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मुश्किल है कि अपने पैगंबर को अपने पास बुलाए? कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन उस दौर में लोगों ने इस पर एतराज किया था, इस पर एतराज करने की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। तो उसके बाद अब आसमान का जब सफर शुरू होता है, हजरत जिब्राइल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ हैं। पहले दरवाजे पर जब पहुंचे तो हजरत जिब्राइल ने दरवाजा खटखटाया। अब ऐसा नहीं कि फौरन दरवाजा खुल जाता, कहते ही अंदर से आवाज आई कि कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अना जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूँ। अंदर से सवाल किया गया कि मन माअका, आप अकेले हो या आपके साथ कोई और भी है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद तीसरा सवाल किया गया कि क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मदरू किया गया है या खुद लेकर आए हो? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदरू किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलाया है। अब इन सवाल करने के बाद दरवाजा खुलता है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कितना बेहतरीन इंतजाम है, यानी हमारी बगैर मर्जी के कोई यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। इस तरीके से दुनिया के अंदर एक प्रधान होता है, विधायक होता है, MP होता है और मुख्यमंत्री होता है, तो उनके पास जितना बड़ा ओहदा होता है इसी एतबार से उनके पास सिक्योरिटी होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को दिखलाने मकसूद है कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कितना बेहतरीन इंतजाम है, हमारी बगैर इजाजत के यहाँ कोई पंखी भी पर नहीं मार सकती। उसके बाद इन तीन सवालों के बाद दरवाजा खुलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। सबसे पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी की मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखकर हजरत आदम बड़े खुश हुए और चारों तरफ से खुश आमदेद की आवाजें आनी शुरू हो गई। उसके बाद अल्लाह के नबी
अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकातें की, गुफ्तगू फरमाई। उसके बाद दूसरे जब दरवाजे पर पहुंचते हैं, दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं, तो वहां भी यही 3 सवाल किए गए थे जो पहले किए गए थे कि कौन है आपके साथ, कौन है। तो 3 सवाल के जवाब देने के बाद अब दूसरा दरवाजा खुलता है, यानी दूसरे आसमान का जब फिर दरवाजा खुलता है, वहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। वहां भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पुरजोर इस्तकबाल किया गया, खुश आमदीद, चारों तरफ से सलाम की आवाजें आ रही है। उसके बाद तीसरे आसमान पर पहुंचते हैं, वहां भी यही मामला हुआ, हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई। उसके बाद हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, हजरत हारून से हुई, हजरत इब्राहीम से हुई, और फिर आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। यानी तमाम आसमानों से गुजरने के बाद, लेकिन हर आसमान पर पहुंचने के बाद ये 3 सवाल किए जाते हैं। 3 सवाल के जवाब देने के बाद ही अब दरवाजा खुलता है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिर में सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच जाते हैं। सिदरतुल मुंतहा क्या चीज है? जब सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुंचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर अल्लाह के नबी का साथ छोड़ दिया। अल्लाह के नबी तने तना खड़े रह गए। अल्लाह के नबी ने हजरत इब्राहीम से फरमाया कि इब्राहीम, क्या मामला है? दुनिया के अंदर हर वक्त मेरा साथ दिया, खुशी के मौके पर, गमी के मौके पर मेरा साथ दिया, लेकिन आज मुझे यहाँ तने तना लाकर खड़ा कर दिया है, क्या मामला है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, यहाँ पर मेरी मुंतहा है, अब मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्ली मुझे जला कर खाकिस्तर कर देगी। अब वहाँ पर सिदरतुल मुंतहा के बारे में आता है कि वहाँ पर एक बेरी का बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था, और उस पर बहुत मोटे मोटे बेर, जैसा कि कोई मटके लटके हुए हो, और बहुत बड़े बड़े पत्ते थे। रिवायत के अंदर आता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्ली पड़ती है तो यहाँ पर रहने वाले तमाम फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस जोर से सजदा करते हैं जैसा कि कोई तितलियां गिरी पड़ी हो। तो सिदरतुल मुंतहा ये जगह है। उसके बाद आप बैतुल मामूर पर पहुंचे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सफर कर रहे थे तो इस दौरान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसी जगह से हुआ कि जहाँ पर एक गड्ढा था, और उसके अंदर नंगे मर्द और नंगे औरतें पड़ी हुई थी। उसके अंदर से आग के शोले उठ रहे थे, और उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो छोटा था, नीचे का कुशादा था, नीचे का खुला हुआ था। इस तरह से एक मटका होता है, मटके का मुंह ऊपर से छोटा होता है, नीचे से चौड़ा होता है, तो इस तरह का वो गड्ढा था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसमें कुछ नंगे मर्द हैं और कुछ नंगे औरतें हैं, और उसके अंदर से आग के शोले निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने मालूम किया कि इन पे अज़ाब कैसा हो रहा है। तो अल्लाह के नबी को जवाब दिया गया कि आपकी उम्मत के वो मर्द और औरतें हैं वो जो जिना क्या करती थी, यानी ये जिनाकार मर्द और जिनाकार औरतें हैं, और इन पे अज़ाब क़यामत तक ऐसे ही दिया जाता रहेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसी जगह से हुआ कि जहाँ से बहुत जबरदस्त तरीके से बदबू फूट रही थी, बहुत जबरदस्त तरीके से बदबू आ रही थी। अल्लाह के नबी ने वहां पर अपने नाक पर कपड़ा लगाया, यानी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, वो इतनी जबरदस्त तरीके से बदबू थी। अल्लाह के नबी ने उनसे मालूम किया कि ये इनको कैसा अज़ाब हो रहा है, इनको एक ऐसी इनके साथ क्या मामला है। तो वहां पर जवाब दिया गया कि आपकी उम्मत के मर्द और औरतों की शर्मगाह से वो पीप निकल रहा है, मर्द और औरतों से पीप निकल रहा है, जिसके इतनी जबरदस्त तरीके से बदबू है। और पूछा गया कि उनके शर्मगाह से वो पीप क्यों निकल रहा है। बतलाया गया कि जिनाकार मर्द हैं और जिनाकार औरतें हैं, यानी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं क्या करती थी, और अपनी शर्मगाह का नाजायज इस्तेमाल क्या करती थी। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो इन तमाम दौरान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत का भी मुशाहदा क्या कराया गया और जहन्नम का भी मुशाहदा कराया गया। वाक़या लंबा हो जाएगा, आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह अज़ीज़ की तफसील की जाएगी। अल्लाह ताला